تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ابدا۔ برادران ملت اسلامیہ، سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصلاح معاشرہ کے نام سے معنون آج کی یہ مقدس بزم، ہمارا اس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آپ تمام آدمیوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ حضرت مولانا محمد انصر رضا صاحب، حضرت حافظ قاری مولانا محمد آصف رضا صاحب، حضرت مولانا محمد فیاض رضا صاحب نوری اور دیگر علماء کرام اسٹیج پہ رونق افروز ہے، یہ میری خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ یہ سب اہل سنت والجماعت کی بہاریں ہیں، اللہ انہیں ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنے والے خطیب سے آپ کو خطبہ سماعت فرمانا ہے، بہترین تقریر سماعت فرمانی ہے۔ چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پاک بزم، سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس ولی، شہنشاہ اولیاء، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل نبی، اور ساتھ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق، پکے محب، خلوص ایثار بھری الفت اور محبت رکھنے والے ہمارے اور آپ کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے آپ کا ایک شعر جو مجھے بہت ہی پسند ہے، جس سے عشق رسول، محبت رسول کا کامل، تام اور واقف اظہار ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک کا وہ شعر فارسی زبان میں ہے، لیکن میں اردو زبان میں اس کی تشریح آپ کے سامنے کر دوں۔ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، جو ذرہ ذرہ شود تنم بخاک لحد، جو ذرہ ذرہ شود تنم بخاک لحد، تو بشنوی صلوات اجزمی ذراتم۔ فارسی زبان ہے، اس کا مطلب اور مفہوم بتا دو۔ اس کا مفہوم ہے، سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، اے لوگوں، جب میرا انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور ہو جانے کے بعد جب میرے جسم کو سپرد خاک کر دیا جائے گا، قبر میں رکھ دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، اور قبر میں دفن کر دینے کے کچھ دنوں کے بعد میرے جسم کے ذرے ذرے اعضاء الگ ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے۔
यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, हुजूर गौसे पाक जो ये फरमा रहे हैं आजिज़ी के तौर पर फरमा रहे हैं, वरना कुरानी, ईमानी, इरफानी और हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमामी अंबियाए किराम को जिंदा रखा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पाक है, इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला सादल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन बादा मौतिही युरज़क। अल्लाह के नबी अपनी मौत के बाद जिंदा है। जमीन पर अल्लाह ने हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्म को खाए, तो अल्लाह के नबी जिंदा है, उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। इसी की तरफ आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इशारा करते हुए इरशाद फरमाया है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और अंबियाए किराम तो जिंदा है ही, हमारे और आपके आका के सदक़े और तुफ़ैल में जो औलियाए किराम है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भी जिंदा रखा है। हुज़ूर ग़ौसे-ए-पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिंदा है, यकीनन जिंदा है। आपकी आजिज़ी फरमा रहे हैं, मर जाऊंगा, कब्र में लोग दफन करेंगे और कब्र में जाने के बाद मेरे जिस्म के आज़ा अलग होकर ज़र्रा ज़र्रा हो जाएगा मेरा जिस्म। तो आगे फरमाते हैं, तू बशनवी सलवात अज़्ज़बिय जर्रातम, मेरे जिस्म जब खाक में सर्रे सर्रे हो जाएंगे तो हर सर्रे से तुमको सलातो सलाम की आवाज मिलेगी। फरमान का मकसद क्या है? सैयदी सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाना चाहते हैं कि हे लोगों, इस दुनिया में मैं जिंदा हूँ, हर वक्त नबी की जात पर सलातो सलाम पढ़ता हूँ। सुबह में सलाम, दोपहर में सलाम, दिन में सलाम, रात में सलाम, खलवत में सलाम, जलवत में सलाम, मकान में सलाम, मैदान में सलाम, सहरा में सलाम, मदरसा में सलाम, मस्जिद में सलाम, मिंबर पर सलाम, मेहराब पर सलाम, जब तक के जिंदा हूँ सलाम पढ़ रहा हूँ नबी की जात पर। और सुन लो, जब मैं कब्र में जाऊंगा और कब्र में जाने के बाद मेरे जिस्म के आज़ा अलग होंगे, सर्रे सर्रे बन जाएंगे, तो सर्रे सर्रे से सलातो सलाम की आवाज आएगी। गौसे पाक की यही तालीम है, यही तरबियत है, यही दर्स है, आपका यही वाज है कि आज कौमी मुस्लिम का हर फर्द, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान, बच्चा हो या बच्ची, मर्द हो या औरत, मशरिक का रहने वाला हो या मगरिब का, शिमाल का या जुनूब का, हर फर्द जहाँ कहीं भी मौजूद है यही नारा लगाता हुआ नजर आता है, मैं वो सुन्नी हूँ जलील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। रिसालत अज़मते मुस्तफा शाने गौसुल वरा हज़रते अल्लामा मुफ्ती मज़हरुल हक साहब क़िबला। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मज़हब इस्लाम के एक अज़ीम आयत, रहबर, रहनुमा और पेशवा। मैंने अभी आयत करीमा तिलावत की है जिसका ताल्लुक दीन इस्लाम से है। मेरा मौजू भी सलाह माशरा किया गया है। आइए मैं अपनी मंजिल की तरफ वापस आऊं। देखिए, इस दुनिया में और आज के जो हालात हैं वो मुसलमानों के बिल्कुल ही मुखालिफ हैं, खिलाफ। ये बताने की जरूरत नहीं है। कहीं का भी मुसलमान हो, मशरिक का हो या मगरिब का, शिमाल का हो या जुनूब का, हिल का हो या हरम का, अरब का हो या अजम का, जहां कहीं भी नजर उठा करके देखिए, हर जगह मुसलमान परेशान हाल नजर आ रहे। कोई इज्जत नहीं, कोई वहार नहीं, जिल्लत का शिकार,
रुसवाई का शिकार हर जगह ये मुसलमान, और हालात ऐसे बन गए हैं कि जिनके दिल में इस्लाम का दर्द है, जिन्हें इस्लाम से हमदर्दी है, जिनके दिल में मुसलमानों का दर्द है, जिनके दिल में मुसलमानों से हमदर्दी है, उनकी जबान से दुआएं निकलती हुई नजर आ रही है। ऐसा माहौल बन गया है, आज दुआएं निकल रही है। मुसलमान और सैलाबे तबाही क्या कयामत है, जरा रोको ये तूफानों का धारा या रसूल अल्लाह। और सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अशक मोहब्बत तो गौसे पाक की बारगाह में मुसलमानों की हालत को देख करके अर्ज कर चुके, गौसे आजम आपसे फरियाद है, गौसे आजम आपसे फरियाद है, जिंदा फिर ये पाक मिल्लत कीजिए। तो मुसलमान हर जगह तबाही और बर्बादी का शिकार, उसमें सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये कि आज कौम मुस्लिम का बच्चा बच्चा, जवान जवान, बूढ़ा बूढ़ा, मर्द मर्द, औरतें औरतें ये शिकायत करती हुई नजर आ रही है। शिकायत कर रहे हैं सभी, और ये शिकायत बीजा भी नहीं है, बड़ी हद तक हकीकत पर मबनी भी है कि आज दीगर कौमों के अंदर हमारे लिए रिवादारी की कोई जगह ही नहीं है। हमारे साथ वो हुस्न सुलूक करना ही नहीं चाहते हैं। हमारा नाम सुना तो नाम सुनते ही हमें डांट देते हैं, फटकार देते हैं, भगा देते हैं। कोई इज्जत नहीं, कोई वफा नहीं, कोई बेहतरीन सलूक नहीं है हमारे साथ में, रवादारी मौजूदगी नहीं है कि हमें इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें, वक़ार, एहतराम और अदब के साथ में हमसे सलूक करें। यहाँ शिकायत है, जहां नाम सुना फौरन ही नफरत, नाम सुना रुख को फेर दिया, नाम सुना मौका मिला तो मारा भी गया, पीटा भी गया। आज का माहौल ऐसा है। लेकिन बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी ये शिकायत है, वजह है, लेकिन कभी आपने गौर भी किया कि आज आपके साथ में रवादारी वाला सलूक नहीं किया जा रहा है? क्या आप खुद अपनी कौम के साथ रवादारी वाला सलूक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मुसलमान दीगर कौमों की शिकायत तो कर रहा कि हमारे साथ कोई रवादारी वाला सलूक नहीं करते, लेकिन क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ, एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ रवादारी का सलूक कर रहा है या नहीं कर रहा है? कभी आपने इस बात पर गौर किया? अगर आप गौर करेंगे तो ये वक्त का सबसे बड़ा अलमिया क्या आज खुद एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई के साथ दूसरे सलूक नहीं करना, रवादारी वाला सलूक नहीं करना। जहां रहम करना चाहिए वहां रहम नहीं, जहां करम करना चाहिए वहां करम नहीं। जगह ले लिया है नफरत ने, दुश्मनी ने, हसद ने, बुग़्ज़ ने, पूरा करना। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ खुद ही रवादारी का सलूक नहीं कर रहा, रहम करम नहीं कर रहा। आज आप कहते हैं कि हमारे ऊपर दूसरी कौमें रहम नहीं कर रही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन ला यरहम ला युरहम। जो रहम नहीं करता है दूसरे पर, अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम नहीं फरमाता। और जब अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाता है तो अल्लाह किसी मखलूक को भी उनके ऊपर रहम करने नहीं देता। हमारा मजहब इस्लाम के मानने वाले, मजहब इस्लाम के जो सबक है, दर्स है, मजहब इस्लाम की जो तालीमात है, वह रहम व करम की तालीम है।
اور رحم و کرم انسان کے ساتھ، اور انسان تو اور مومن کا مومن کے ساتھ رحم و کرم کرنا وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ مذہب اسلام میں اگر حقیر سے حقیر مخلوق پر بھی رحم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر اور بہترین انعام عطا فرمایا کرتا ہے۔ بات مختصر کر کے ایک واقعہ سے سمجھاؤں۔ حضرت امام غزالی مذہب اسلام کے زبردست عالم، لمبی نہیں کروں گا بات کو، بڑے مختصر انداز میں بتاؤں، وقت کی کمی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب انتقال ہوا، سننے کے قابل ہے واقعہ، انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد کسی مرد مومن نے، صالح اور نیک آدمی نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ اور دیکھا کیسے؟ اس طریقے سے دیکھا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنت میں موجود ہے، اور وہ بھی جنت کے باغوں میں، جنت کے باغ میں لگا ہوا ہے تخت، تخت کے اوپر لگی ہوئی ہے کرسی، سونے ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی، اس کے اوپر حضرت امام غزالی کو جلوہ فرما دیکھا۔ خواب میں ہی انہوں نے حضرت امام غزالی سے کہا اللہ نے آپ کو جنت عطا فرمایا ہے، اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، بہترین مرتبہ دیا ہے، آپ یقیناً اس کے حقدار ہیں۔ کہا کہ وہ حقدار ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس بنا پر حقدار کہ آپ عالم شریعت بھی تھے اور عالم طریقت بھی، آپ کی ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ تشریح میں گزری، دین اسلام کو پھیلانے میں گزری۔ کتنے گمراہوں کو آپ نے سیدھا راستہ دکھایا ہے، صراط مستقیم پر لایا ہے، یقیناً آپ کو یہ صلہ اور یہ اجر ملنا ہی چاہیے تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ عطا فرما دیا۔ حضرت امام غزالی نے جواب دیا، اے شخص، اللہ نے مجھے جنت عطا فرمایا، بڑا فضل و کرم کیا ہے، لیکن تو تمہاری سوچ ہے، فکر ہے، تم نے جو فیصلہ کیا ہے، رائے قائم کیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ اللہ نے مجھے اس بنا پر جنت نہیں دیا کہ میں عالم شریعت تھا، اس بنا پر نہیں کہ میں عالم طریقت تھا، اس بنا پر نہیں کہ سینکڑوں کتابیں میں نے لکھی، اس بنا پر نہیں کہ میں نے بے شمار گمراہوں کو صراط مستقیم میں لایا۔ یہ سب اپنی جگہ پر ہے، نمازی بھی تھا، روزہ دار بھی تھا، حاجی بھی تھا، غازی بھی تھا، سب کچھ میرے پاس میں موجود، تسبیح، تحلیل، اوراد وغیرہ سب موجود، لیکن ان کسی چیز کی بنا پر اللہ نے مجھے جنت نہیں دیا ہے۔ جنت دیا ہے ایک معمولی سے واقعے کی بنا پر، اور وہی معمولی سا واقعہ آپ سماعت فرما لیں اور اپنے ذہن کو پاک کر لیں، صاف کر لیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جنت عطا فرمایا ہے معمولی واقعے کی بنا پر۔ اور جب پوچھا اس خواب دیکھنے والے نے کہ وہ معمولی واقعہ کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، گرمی کے دن تھے، دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، جب میں زندہ تھا تب میں گرمی کے دن میں دوپہر میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے روم کے اندر بیٹھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک لکھ رہا تھا۔ پرانے زمانے میں لکھنے کا انداز کیا تھا آپ کو معلوم، یہ آج کل کے پین ہوتے نہیں تھے، دوات ہوتی تھی، لکڑی کے قلم ہوتے تھے، دوات کے اندر قلم ڈال کر سیاہی سے لکھا جاتا تھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں گرمی کے دن میں دوپہر کے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک لکھ رہا تھا۔ لکھنے کے درمیان میں نے دیکھا کہ ایک مکھی اڑتی ہوئی بھنبھناتی ہوئی آئی، اور آنے کے بعد میرے قلم کے ارد گرد چکر کاٹنے لگی، اور جب میرے قلم کا وہ طواف کرنے لگی، میرے قلم کے ارد گرد چکر کاٹنے لگی،
تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا گرمی کا دن ہے، دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، یہ مکھی پیاس سے بے حال ہے، شاید وہ سیاہی چوس کر اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے قلم کو روک لیا، اور جب قلم کو روکا تو مکھی میرے قلم کے نوک پر بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد اس نے قلم میں موجود سیاہی کو چوسنا شروع کیا، چوستی رہی، اور جب اس کی پیاس بجھ گئی تو مکھی اپنی منزل کی طرف روانہ، اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک لکھنا شروع کر دیا۔ اور جب میرا انتقال ہوا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی، حاضری ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے غزالی تیرے نام اعمال میں عبادت بھی ہے، ریاست بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے، نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو عالم شریعت بھی تھا، عالم طریقت بھی، گمراہوں کو تو نے راستہ دکھایا، بہت ساری نیکیاں موجود ہیں، سبھی مجھے پسند ہیں، لیکن تیری نیکیوں میں سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ تو نے میری ایک مخلوق مکھی کو سیراب کر دیا تھا، تیری یہ عطا مجھے اتنی پسند ہے کہ اس کی بنا پر میں نے تیرے سارے گناہ بخشے اور تجھے میں نے جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اسلام ہے، جس کو مان کر کے ہم مومن اور مسلمان ایک مکھی کے اوپر آدمی رحم کرتے، اس کی پیاس بجھاتے تو اللہ اتنا بڑا انعام عطا فرماتے کہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرماتے، اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اور پھر اشرف المخلوقات میں ایک مومن، ایک مسلمان جو سب سے اعلیٰ فرد ہے انسان کا، ایک مومن اور مسلمان کی اگر ایک انسان پیاس بجھا دے تو پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اسلام آج ہم بازو میں دیکھ لیں، پڑوس میں دیکھ لیں، ہمارے گھر سے دولت و ثروت کے چشمے پھوٹتے ہیں، کوئی کھانے والا موجود نہیں ہے، پڑوس میں ایک ایسا انسان ہے جو فقر و فاقہ میں تندرستی میں زندگی گزر رہا ہے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم جا کر کے اس مومن مسلمان پڑوسی کا حال پوچھ لیں، ان کی پریشانی کو دور کر دیں۔ ہمارے اندر رواداری نہیں، ہمارے اندر حسن سلوک نہیں، اور جب ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ رواداری حسن سلوک نہیں کرنا ہے تو پھر دوسری قوموں سے ہم رواداری اور حسن سلوک کی توقع رکھیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بانجھ عورت سے بچے کی امید رکھنا۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ حسن سلوک اور رواداری کو ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر جگہ دیں۔ اور برادران ملت اسلامیہ، یہ مومن اور مسلمان کتنی بڑی عزت والا ہے، کتنے بڑے وقار والا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ احادیث کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، ایک صحابی رسول ہے، بڑی پیاری حدیث ہے سننے کے لائق۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا، ای العمل افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل ایسا ہے، کون سا کام ایسا ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، بزرگی والا ہے، مرتبے والا ہے؟ کون سا عمل تو بہت سارے ہیں نا مذہب اسلام میں۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں، دیکھیے مذہب اسلام میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہمارے لیے فرض کیے گئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ جو فرض ہے وہ سب سے اہم ہے، سب سے اعظم ہے، سب سے عظیم ہے،
कोई भी अमल उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ जो साहिब पूछ रहा है वो फर्ज के बारे में नहीं, वाजिब के बारे में नहीं, बल्कि नफली तौर पर जो काम किए जाते हैं उन कामों में सबसे बेहतर काम क्या है? अय्युल अमल अफजल या रसूल अल्लाह, कौन सा अमल सबसे ज्यादा फजीलत वाला है? आज देखिए ये फर्ज जो हमारे ऊपर है, अल्लाह ने जो फर्ज किया है उस फर्ज को हम अदा करते हुए नजर नहीं आ रहे। आज ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़मा आपने सजाया है, मुबारक है, बाबरकत है। यकीनी तौर पर अल्लाह ताला इसका अजर आपको अता फरमाएगा। गौसे पाक के फैज़ व बरकत मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, यकीनन मिलेंगे, 100% मिलेंगे। लेकिन गौसे पाक की बद मना लेना ही काफी नहीं है। गौसे पाक की सीरत पर, उनके नक्शे कदम पर चलना भी हमारे लिए जरूरी है। आज हम फर्ज छोड़ रहे हैं, वाजिब छोड़ रहे हैं। सैयदी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। वजू किया, ईशा की नमाज अदा फरमाई, रात भर जिक्र इलाही में मशगूल रहे और फिर वजू से फजर की नमाज अदा की है। गौसे पाक का नारा लगाने वाले हम भी हैं, खास तौर पर हमारे नौजवान। ईशा भी गायब और फजर तो गायब हो ही जाती है। ईशा बाजारों में तफरीह करने में गुजर जाता है और फजर बिस्तर के ऊपर आराम से सुबह 11 बजे तक सोने में गुजर जाता है। हाल है हमारा ये, कोई तन समझिए, हाल हमारा। और आजकल हुजूर गौसे पाक ने तो ईशा के वजह से फजर की नमाज पढ़ी है 40 साल तक। आजकल हमारे नौजवानों का हाल क्या है? घर के अंदर जाएंगे रात में और जाने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद बिस्तर के ऊपर पड़े तो बिस्तर के ऊपर कौन सा मशगला उनका शुरू होता है? वजू तो छोड़िए, वजू तो करना ही नहीं है उन्हें, ऐसा तो पढ़ा ही नहीं, सोने से पहले वजू करना चाहिए, वो करना याद ही नहीं। सोने क्यों नहीं, बिस्तर के ऊपर लगा दिया टेक, तकिया पे लगा दिया टेक, स्मार्टफोन मौजूद है, ले लिया हाथ में, शुरू हो गया देखना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, ये सर्च, वो सर्च, वो सर्च, वो सर्च, देखना शुरू हुआ। और फिर देखते कब तक के रहते हैं मालूम है? 3 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे सुबह तक, तहज्जुद तक वो देखते हैं मोबाइल। और तहज्जुद के वक्त में जाकर के शैतान उन्हें सुलाता है, कहीं ये तहज्जुद की नमाज ना पढ़ ले, नेकी का काम ना कर ले, सुला देता उन्हें। और जब सोते हैं तो फजर गायब, 10-11 बजे खुलती है नींद। आजकल हमारे नौजवानों का मामला यह हो गया है, हंसने की बात नहीं, सोचने की बात, सबसे इबरत लेने की बात है। गौसे पाक ने 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी है और आज उसी गौस का नारा लगाने वाले नौजवानों का हाल यह है कि बिस्तर पे गए तो व्हाट्सएप देखते देखते सुबह हो गई, फिर सोए। गोया आजकल के नौजवानों का नारा यह है कि मैं सो जाऊं या व्हाट्सएप कहते कहते, और खुले आंख या फेसबुक कहते कहते। नौजवानों, अफसोस है, हसरत है, दुख है, लानत है, नहुसत है ऐसी जिंदगी पर जिसका मकसद हो मैं सो जाऊं या व्हाट्सएप कहते कहते और खुले आंख या फेसबुक कहते कहते। मैं कहना चाहता हूं नौजवानों, मुबारक है वो जिंदगी, बरकत वाली है वो जिंदगी, फजीलत वाली है वो जिंदगी, रहमत वाली है वो जिंदगी, जिस जिंदगी का मकसद ये हो कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान।
سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ آج ہمارا حال عجیب ہو گیا ہے. غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وقت سے فجر کی نماز پڑھی ہے اور یہاں فرض نماز پڑھنے کی ہمیں چھٹی نہیں ہے اور اوپر سے جانتے ہیں شکایت بھی کرتے ہیں یہ ہمارے نوجوان چاہے ہمارے بڑے بوڑھے یا چاہے ہماری مائیں بہنیں مستورات جو ہماری خواتین پہنچ جاتے ہیں حضرت کے پاس. حضرات گھر کے اندر بڑی تنگی ہے رزق میں برکت نہیں ہے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں قرض پہ قرض ہے لون پہ لون لے لیا مکان گروی رکھ دیا عزت و وقار کہاں پر ہے کماتے بھی ہیں پھر بھی برکت نہیں ہوتی ہے. حضرات تم بھی ایک کوئی تعویذ لکھو چمتکاری تعویذ 5 منٹ کے اندر میں ہمیں لاکھ پتی کروڑ پتی بن جانا سارا معاملہ حل ہو جاتا. ایسی شکایت لے کر کے پہنچتے ہیں کہاں حضرت کے پاس. میں یہ کہنا چاہتا ہوں نوجوان موبائل دیکھ رہا ہے تہجد کے وقت میں فجر کی نماز بھی چھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حضرت علامہ مولانا تشریف لا رہے نعرہ رسالت سے استقبال علماء اہل سنت قاضی کرناٹک حضرت علامہ مولانا مفتی اسلم صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الحق صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث الورا مسلک اعلی حضرت بستی بستی قریہ قریہ صوفی ملت فاؤنڈیشن صوفی ملت فاؤنڈیشن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مفتی مظہر الحق صاحب قبلہ مفتی اسلم صاحب قبلہ بہت بڑی شخصیت ریاست کرناٹک کی ایک عظیم قیادت شخصیت کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم صاحب مصباحی. وہ جلوہ فرمائے ہماری سعادت خوش نصیبی سرفرازی مقرر خصوصی بھی تشریف فرما ہو گئے ہیں. جامعہ حضرت بلال بنگلور کے سرزمین پر ایک ایسا ادارہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا مرکز. اس مرکز سے وابستہ مرکزی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم صاحب مصباحی کی ہے. علم و حکمت کے آبدار موتی فضیلت کے بادشاہ ہے. ان کی شخصیت ہمارے لیے یقینی طور پر خداوند قدوس کا ایک بیش قیمت تحفہ ہے. جتنی بھی قدر کریں وہ کم ہے. آپ حضرات ان سے استفادہ کیجئے جامع حضرت بلال سے استفادہ کیجئے اور حضرت کے لیے جامع بلال کے لیے اپنے جان تن من دھن سب کو قربان کر دیجئے. سارے خلوص کا مظاہرہ کر دیجئے. یہی ہمارے اہل سنت والجماعت کے فروغ کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت و گارنٹی. دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں آپ سے کہہ رہا تھا آج کا نوجوان ہے شکایت کرتا ہے کسی میں تنگی کا گھر میں برکت نہیں ہے نحوست ہے اور حال کیا ہے موبائل جب دیکھتا ہے تو تہجد تک موبائل دیکھتا رہتا ہے اور پھر تہجد کا وقت ہوا تو شیطان جان بوجھ کر کے اسے سلا دیتا ہے. فجر بھی غائب. حضرت موجود ہے آپ پوچھ لیجیے معلوم ہوگا. فجر صادق کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے رزق کو تقسیم فرماتے ہیں. جب رزق تقسیم ہو رہا ہے تو آج کا نوجوان بستر کے اوپر سویا ہوا کھرا کھیلے رہا ہے. اللہ کی یاد نہیں اللہ کا ذکر نہیں.
फिर घर में बरकत होगी तो कैसे, और रहमत का नुज़ूल होगा तो कैसे रहमत का नुज़ूल होगा। शिकायत, भेजा शिकायत, रवादारी की बात चल रही थी कि आज हमारी आम शिकायत है कि किसी कौम के अंदर हमारी रिवादारी नहीं है। जब चाहा हमें मारा, जब चाहा पीटा, नाम सुना नफरतें करने लगे। असल उसकी वजह यह है कि हम मुसलमानों मोमिनों के अंदर ही खुद रिवादारी नहीं है। और मुसलमान मोमिन तो बड़ी दूर की बात है। आजकल का माशरा तो ऐसा हो गया कि जिस माँ बाप ने पैदा किया, जिस माँ बाप ने इंसान को जन्म दिया, जिस माँ ने बेटे को अपने शिकम के अंदर 9 महीने तक रखा, अपनी ताकत, अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, आज का नौजवान जब बड़ा होता है, सीने शऊर को पहुंचता है, जवानी की उम्र को पहुंचता है, शादी करता है। शादी कर लेने के बाद उसी बेटे का सबसे बड़ा कारनामा यह होता है कि वह अपने घर से अपने बाप को, अपनी माँ को निकालता है। ये दूसरे कौम के अंदर भी मौजूद है, हमारे अंदर भी मौजूद। और अगर मेरी बात गलत है तो मुझे बताया जाए कि आज कौम ने, समाज ने, माशरे ने या गवर्नमेंट ने ये ओल्ड एज होम बनाया क्यों है? बुजुर्गों के घर, बुजुर्गों का आशियाना, ये किस लिए बना है? ये हमारी जिहालत, जुल्म, जबर और इस्तेबदाद की मुंह खोलती हुई तस्वीर और इमारत। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक नहीं, रिवादारी नहीं, और उम्मीद है कि दूसरे कौन हमारे साथ हुस्न सलूक करे, वो रिवादारी है। याद रखिए, इज्जत मिलती है वालिदैन की खिदमत से, वक़ार मिलता है वालिदैन की खिदमत से, और दुनिया के अंदर शोहरत, नेक नामी और मकबूलियत मिला करती है वालिदैन की खिदमत से, और रिज़्क़ में बरकत होती है तो माँ बाप और वालिदैन की खिदमत की वजह से होती है। अल्लाह राजी होता है, खुश होता है तो माँ और बाप की खिदमत से राजी होता है। एक वाक़या मुझे याद आ गया, मुख्तसर लफ्ज़ में सुना दो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, सय्यदुत ताइफ़ा, औलियाए किराम की एक गिरोह जमात के सरदार सय्यद जुनैद बगदादी। एक मरतबा किसी शख्स ने आपसे पूछ लिया कि हज़रत ये बताइए आपको ये वलायत कैसे मिली और आप सय्यदुत ताइफ़ा कैसे बन गए? आपने जो बताया वो सुनने के लायक है। इरशाद फरमाया कि वाक़या यह है कि एक मरतबा जब रात बहुत ही ठंडी थी, जाड़े का मौसम, ठंड के दिन, रात बहुत ठंडी, गरम गरम कपड़े में सभी अपने घरों में सोए हुए थे, मैं भी सोया हुआ था, मेरी वालिदा मोहतरमा भी सोई हुई थी। अचानक देर रात में मेरी माँ की आवाज मेरे कान में पहुंची, बेटा जुनैद, प्यास लगी है, पानी पिला दो। प्यास लगी है, पानी पिला दो। आज का नौजवान होता, ठंड के एग्जाम होते या ठंड का एग्जाम ना हो, फिर भी आज का नौजवान अगर होता 2 बजे, 3 बजे या 1 बजे रात को माँ आवाज देती, बेटे प्यास लगी है, पानी पिला दो, तो ये मोबाइल देखने वाला, उसमें खोया हुआ नौजवान ना जाने कितनी नफरत और कुदूरत से काम लेता, पानी नहीं देता, देता भी तो नापसंदीदगी से और नफरत भरे दिल से देता। लेकिन नहीं,
हजरत जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं, वहां की आवाज आई, बेटा जुनैद प्यास लगी है, पानी पिला दो। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैंने गर्म कपड़े को फेंका, बिस्तर से उतरने के बाद प्याला लिया और मटके से प्याले के अंदर मैंने पानी भरा और पानी भर कर लेके अपनी माँ की खिदमत में पहुंच गया ताकि वालिदा की प्यास बुझा दो। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जब मैं प्याला लेकर के पहुंचा तो देखा कि मेरी वालिदा मोहतरमा सो चुकी थी, फिर नींद की आगोश में पहुंच चुकी थी। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैं प्याला लेकर उस ठंडी रात में अपनी अम्मी के सिरहाने में खड़ा रहा। प्याला मेरे हाथ पर सिरहाने में खड़ा रहा कि ना जाने कब मेरी माँ की आंख खुले और मेरी माँ मुझसे पानी का मुतालबा करे और मैं फौरन पानी पेश कर दूं। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि फजर की अज़ान हो गई, वालिदा माजिदा बेदार नहीं हुई और मैं अपनी हथेली पर प्याले में पानी लिए खड़ा रहा। ठंडा मौसम और ठंडे मौसम के साथ साथ प्याला ठंडा, पानी ठंडा। जब फजर के वक्त वालिदा बेदार हुई तो मैंने प्याला उठाया अपने हाथ से माँ को पानी देने के लिए। माँ ने कहा, बेटा जुनैद तो अभी तक सोया नहीं है। कहा, वालिदा सो गया था लेकिन आपने पानी मांगा था, लेकर के आपके सिरहाने खड़ा हूं। फरमाते हैं जब पानी का प्याला मैंने अपने हथेली से उठाया तो ठंड की वजह से मेरी हथेली के चमड़े गल चुके थे, सड़ चुके थे। प्याला उठाया तो हथेली के चमड़े भी उधर गए, ऊपर आ गए। माँ ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए और माँ की ज़बान से दुआने के लिए आलमीन मेरा बेटा जुनैद मेरी फरमा बरदारी में रात भर मेरे सिरहाने खड़ा रहा और ऐसा इशार कि प्याले से मेरे बेटे के हथेली के चमड़े भी निकल गए हैं। खुदा बंदा मैं बहुत खुश हूँ, तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन, दुआ करती हूँ कि इलाहुल आलमीन मेरे बेटे को ना तो सिर्फ वली बना बल्कि वलियों की जमात का सरदार भी बना दे। माँ की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने मुझे वलायत के साथ साथ सय्यदुत ताइफा भी बना दिया। ये माँ की खिदमत का सिला है। माँ की खिदमत नहीं, वालिदैन की इताअत नहीं, और उम्मीद हम रखें दूसरी कौम से कि हमारी इज्जत करे, हमारा मुकाम बुलंद रखे, हमारे साथ रिवादारी का सलूक करे। पहले हमें अपने आप को बदलना चाहिए, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहिए। आज नौजवानों का माशरा देख लीजिए, सुबह देख लीजिए, दोपहर देख लीजिए, शाम देख लीजिए, तो खून के आंसू रोने की तबीयत चाहती है। कहते हैं दूसरे को हमारा अदब करे, हमारा एहतराम करे, हमारे साथ रिवादारी का सलूक करे। कितनी खुदा की हम नाफरमानी करते हैं। आज नशा और शराब नोशी का रुझान दीगर कौमों से मुताद्दी होकर हमारे नौजवानों के अंदर सरायत कर रहा है, पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। माँ परेशान है, बाप परेशान है, बीवी परेशान है, बच्चे परेशान है, खाने के लिए, पीने के लिए, पढ़ने के लिए। ऐसा शौक, स्कूल में फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उसी नौजवान को, उसी बाप को देखिए, मोबाइल जब है उनके पास में तो 1 लाख 1.5 लाख रुपये का उसके पास मोबाइल मौजूद है। क्या घटिया सोच है, क्या फिक्र है, क्या जिंदगी का अंदाज है। सारी दुनिया अपने बच्चों को पढ़ा रही है भूखे रहकर, प्यासे रहकर, और आज का ये मुसलमान जो इज्जत व वक़ार चाहता है, दूसरे से उसने सलूक और रवादारी को तलब कर रहा है, जमा करने के लिए फीस नहीं है और मोबाइल लाखों रुपये का रखा जा रहा है। कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, मोबाइल को तोड़ दो।
1,00,000 के मोबाइल की जरूरत नहीं है, 500,000 रुपये के मोबाइल रख लो, भूखे रहो, प्यासे रहो, अपने बच्चों को पढ़ा कर एक बेहतरीन इंसान बनो। और आज का समाज शराब, नशा, नौजवानों में आज लत पड़ चुकी है। शराब कितनी नजीस चीज है, कितनी गलीज चीज है, उसका अंदाजा आप लगाना चाहते हो तो इस बात से लगा दीजिए। आप हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी दरिया के अंदर शराब का एक कतरा गिर जाए और फिर वो दरिया का पानी खुश्क हो जाए, दरिया का पानी खुश्क होने के बाद वहां पर उगाए घास, दरिया के अंदर शराब का एक कतरा गिरे, पानी खुश्क हो, खुश्क होने के बाद वहां पर उगे घास, हजरत अली फरमाते हैं मेरे ज़मीर को ये गवारा नहीं कि वो घास अपने जानवरों को खिलाऊं, जानवरों को चरने दो। इतनी बड़ी नजीस चीज, कितनी हालत बदल गई। पानी में गिरा, पानी खुश्क हुआ, घास निकला, वो घास हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं अपने जानवर को चरने भी नहीं दूंगा। कितनी खराब तबीयत और फितरत का है आज का नौजवान। हज़रत अली को जो वो गवारा नहीं है, आज उसी शराब के कतरे को आज का मुस्लिम नौजवान अपने हल्क से नीचे उतारता हुआ नजर आ रहा है। पूछिए क्या है? नहीं, टेंशन बहुत ज्यादा है, टेंशन खत्म करने के लिए शराब पी रहा। और आजकल तो तरह तरह के नशे चल गए हैं, शराब ही नहीं, अफयून, भांग, न जाने क्या क्या नशे, पेट्रोल सुन करके, अबलेट खा करके, कोरेस पी करके। आजकल नौजवान लोग इसी का शिकार है, खासतौर पर कॉलेज में पढ़ने वाले तबका। जिस नशा को, शराब नोशी को शरीयत ने हराम कर दिया है, आज का नौजवान उसी में मुब्तला। सेहत भी बर्बाद, माल भी बर्बाद, दौलत भी बर्बाद, समाज में इज्जत नहीं, बकानी सब कुछ खत्म इसकी वजह से हो रहा। और फिर चाहते हैं हमें कि अभी इज्जत मिल जाए, वकार मिल जाए। किसी मर्द साले ने एक मर्तबा शैतान को देख लिया, शराब उम्मुल खबाइस देख लिया ख्वाब में शैतान को। पूछा शैतान से, ये बताओ नौजवानों को गुमराह करने का सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे पास है क्या? शैतान ने जवाब दिया, नौजवानों को गुमराह करने का, बर्बाद करने का, तबाह करने का, हिलाक करने का मेरे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है नशा। नशा, शराब बदमस्त होता है, अक्ल में फुतूर आती है, फिर वो गेंद की तरीके से मेरे हाथ में हो जाता है। मैं जैसा चाहता हूं वैसा उससे नचाता हूं और वैसा काम उससे देता हूं। ये उम्मुल खबाइस शराब। नसई शरीफ में हदीस मौजूद है, एक खूबसूरत औरत ने अपने पास शराब भी रख लिया, छोटे से बच्चे को भी रख लिया, फिर एक नौजवान को बुलाया, कहा तीन चीजें मैं खूबसूरत, ये शराब, ये बच्चा, तीनों में से एक जुर्म कर लो, या तो बदकारी कर लो मेरे साथ, या शराब पी लो, या फिर बच्चे को कत्ल कर दो। सोचा यार शराब तो थोड़ा सा हल्का सा गुनाह है, इन दोनों गुनाहों से बदकारी तो बहुत बड़ा गुनाह है। आजकल हमारे माशरे में बदकारी को भी बदकारी नहीं समझा जा रहा है, फैशन समझा जा रहा है। मुस्लिम नौजवानों की बात कर रहा हूं, क्लब, पार्क, और आजकल ये नई नई स्कीम चल गई है ना, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, वन नाइट स्टैंड, ये सारे के सारे हमारे समाज और माशरे के अंदर मौजूद है। ये दूसरी की इज्जत को तबाह बर्बाद करने वाले आज के मुस्लिम नौजवान
अपनी इज्जत का मुतालबा करें तो ये तज्जुब की बात नहीं, हैरत की बात नहीं, तो और क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आए, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे, और आते ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे आप ज़िना करने की इजाजत दे दी। कितना बड़ा जली था वो इंसान, बेशक हिम्मत देखिए उसकी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने के बाद कहा, मुझे ज़िना करने की इजाजत दे दीजिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। दानी अज़रिबुन कहू या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे दीजिए, मैं इस बेअदब की गर्दन अभी तलवार से उड़ा देता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, नहीं। पास बुलाया उस नौजवान को। मैं समझाना चाहता हूं, देखिए ये इज्जत और वकार का मामला ऐसा है जैसा कमा तदीनो तो दान, एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेने वाला मामला है। आज दूसरे की बहू बेटियों को आप रुसवा करेंगे तो आप ये न समझ लीजिए कि आपके बहू बेटी की इज्जत महफूज रहेगी। ये बिजानी बिल्ला आजाद, दूसरे को भी इज्जत करें, बेवकार करें, अल्लाह ताला आपको बेइज्जत और बेवकार फरमा देगा। बुलाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास, कहा तू मुझसे ज़िना करने की इजाजत मांग रहा है। कहा या रसूल अल्लाह, मैं ज़िना का आदी हूँ, मुझे ज़िना करने की इजाजत दीजिए। आपने फरमाया, अच्छा एक बात बता, पहले तू ज़िना करने की इजाजत मांग रहा है, ये बता जिस औरत के साथ तू ज़िना करेगा उस औरत के बहुत सारे रिश्तेदार भी होंगे। जिस औरत के साथ तू ज़िना करेगा वो औरत किसी की माँ होगी, किसी की खाला होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी न किसी की माँ है, किसी की खाला है, फूफी है, बहन है, बेटी है। तो दूसरे की बहन, बेटी, माँ, खाला, फूफी के साथ ज़िना करना चाहता है और मुझसे इजाजत मांग रहा है। ये बता पहले कि अगर कोई इंसान तेरी बहन के साथ, तेरी फूफी के साथ, तेरी माँ के साथ या तेरे रिश्तेदार के साथ ज़िना करे तो तुझे कैसा लगेगा? दुखती रग पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा, दिल मिला गया। कहा या रसूल अल्लाह, मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि कोई शख्स मेरे घर की औरतों को, मस्तूरात को इस तरीके से रुस्वा और ज़लील करे, उसके साथ ज़िना करे, मुझे गवारा नहीं है। आपने फरमाया, जब तुम्हें ये गवारा नहीं है तो जिसके साथ तू ज़िना करना चाहता है, इजाजत मांगना, उसे ये बात कैसे गवारा होगी, कैसे पसंद आए? फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास बुलाया, सीने पे हाथ रखा, दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा तहहिर कल्बा, ऐ अल्लाह इसके दिल को पाक और साफ फरमा दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, इजाजत का सेहरा है, नायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली थी आए मोहम्मद, अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई, दिल पाक हुआ, साफ हुआ उस नौजवान का। और रवायतों में आता है कि फिर वो ऐसा बन गया कि जब वो जमीन पर, बाजारों पे, सड़कों पे चला करता था तो नजर झुकाए रहता था, आंख उठा कर नहीं किसी औरत को देखा नहीं करता। तो आज का नौजवान अपनी इज्जत की फिक्र करने की, इज्जत चाहता है, दूसरे को भी इज्जत करना चाहता है। पहले दूसरी की इज्जत और हुर्मत को मलबूज रखिए, महफूज रखिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको इज्जत वाला बना देगा, मोहतरम बना देगा, वक़ार बना देगा, वक़ार वाला बना देगा। तो आज का ये समाज और माशरा, जरूरत है हमें अपने समाज को, अपने माशरे को सुधारने की। मस्जिद को आबाद करने की हमें जरूरत है। ये नशा, शराब, जितनी भी चीज है उनसे हम दूर रहे। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुआ कि होनी चाहिए वालिदैन की, इस बात के ऊपर ध्यान रखें, इसका खास ख्याल रखें। बहरहाल आज हमारी जो हालत है वो निहायत ही नाकतब हालत है।
لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی آپ پلٹے سیدھے راستے کی طرف, مسجدوں کی طرف, قرآن کی طرف, شریعت کی طرف, اتباع سنت کی طرف بن جائیے. عاشق رسول بن جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور پکے عابد کر دیجیے مسجدوں کو آباد. آپ مسجد کو آباد کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد کر دے گا, زندگی کو آباد کر دے گا, حیات کو آباد کر دے گا. آپ کے زندگی کے ہر شعبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آباد کر دے گا اور شاداب کر دے گا. اللہ دعا ہے اللہ ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے شدت پر عمل کرنے کی. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی. اور گویا حضرت اپنے خطاب کے ذریعے آپ کو ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے. گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا. صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا بولیں گے سبحان اللہ. تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید